Jai Shri Mahakal, how is everybody? Kindly turn on your cameras. Moon and Rahu conjunction. How many of you have Moon and Rahu conjunction? It can be with a sign, it can be with aspect, it can be with the same house. So just one person? डिग्री कल साथ साथ में है शायद. Yeah, even with the degree. My mom's chart has. Your mom's chart is having it. Okay. सर ये हम नवमांश में भी लेंगे क्या कॉम्बिनेशन? D1. D9 में भी ले सकते हो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही. ऐसे तो इतने चार्ट हैं, 144 चार्ट्स हैं, जो मुझे पता है उससे ज़्यादा भी होते हैं. तो कहीं ना कहीं you'll find Moon Rahu, but we are sticking to D1 right now. D1 भी नहीं है, D9 में है मेरा. कोई बात नहीं. So before we begin today's lesson, My son है. I Think- have Moon and Ketu. Moon and Ketu. That's a different thing. We'll do that as well. Some other day. Okay. So think of your gurus and think of Lord Ganesha before we begin today's lesson. The most complex conjunction in Vedic astrology is the Moon and Rahu conjunction. Which is why we might not be able to cover everything in this one lesson. But I will try to open your mind in a different way to explore this particular conjunction. शायद आप में से 90% लोग जिस दृष्टि से आज हम चंद्र राहु को देखेंगे, उस दृष्टि से शायद आपने अभी तक ना देखा हो. तो इस लेसन का एक एक सूत्र इम्पॉर्टेंट है और नोट करने वाला है. राहु क्या है? जब राहु की बात होती है, कहते हैं सारे प्लैनेट एक तरफ और राहु एक तरफ. ऐसा क्यों कहा जाता है कि राहु एक तरफ और सारे प्लैनेट एक तरफ? राहु कोई भी प्लैनेट बनने की कला रखता है. जरूरत पड़ने पर राहु सूर्य भी बन सकता है, जरूरत पड़ने पर राहु शनि भी बन सकता है, जरूरत पड़ने पर राहु किसी भी प्लैनेट की रेप्लिका कॉपी बन सकता है. राहु इज अ वायरस. Virus is host specific. Do you know that virus is actually dead when it's outside the body? If you guys know a bit of medical, you should know that. अगर for example, let's suppose अगर ये मेरे पास कोई भी ABC चीज़ है, let's suppose मेरे पास ये SSD है और अगर इसके ऊपर राहु पड़ा है या इसके ऊपर वायरस पड़ा है एक्चुअल में, तो वो डेड है. जब तक इसको शरीर नहीं मिलेगा तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन जैसे ही इसको शरीर मिल जाएगा, ये मेरे सेल्स को ओवरटेक कर लेगा. ही विल ओवरटेक द सेल्स ऑफ माई बॉडी. दैट इज वॉट द राहु डज. राहु ओवरटेक्स अदर थिंग्स.
उसका अपना कोई वजूद नहीं है. Rahu alone is like a dead virus, like a virus which is sitting outside the body. But once it gets the body, it becomes host specific, it takes over that particular body. Now, what does it take over? It takes over the sign first. सभी की कुंडली में राहु कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइन में तो होता है. अगर स्कॉर्पियो में राहु चला जाता है तो वो रिवेंजफुल राहु बन जाता है, बिकॉज स्कॉर्पियो इज अ साइन ऑफ रिवेंज. It activates the revenge, it takes over the revenge, and then you feel like why the bad things are happening into your life. Come on, they are the tiny little karmas that were waiting to kill you, and now because it is in the hands of Rahu, they are gonna be quick, they are gonna be transformative, they are gonna be mystical, they are gonna be mysterious, and then you'll feel like, oh no, what's happening? Scorpio Rahu, just an example. What sign is best for Rahu? Gemini, Okay, Gemini. What anybody else have their opinion? Taurus, Virgo. दो साइन नहीं बोलने Aquarius. वैभवी जी, एक साइन बोलना. आपने दो बोल दिए. पहले आपने जेमिनी बोल दिया, अब आपने टॉरस बोल रहे. ना चूज वन साइन. Taurus, sir, Taurus. सो सीमा जी इज टेकिंग ओवर टॉरस. Virgo. वर्गो. अब ये आप लोग बोल रहे हो उच्चता नीचता या वर्गोत्तम देख करके. बेसिकली किसी ने बोल दिया टॉरस क्योंकि किसी को लगता है टॉरस में उच्च का होता है. किसी ने बोल दिया जेमिनी क्योंकि जेमिनी में उच्च का होता है. कोई एक्वेरियस बोल देगा क्योंकि एक्वेरियस उसका अपना साइन है. और कोई बोल देगा वर्गो क्योंकि वो उसका मूल त्रिकोण साइन है. लेकिन इनमें से कोई भी साइन ऐसा नहीं है जिसमें राहु बहुत अच्छा हो. राहु इज बेस्ट इन द कैंसर साइन. Very difficult to think about. Why is it So best इसमें तो there? weak है सब. Wait. Why is it best there? It acts like moon. Yes, it becomes motherly towards you. When the Rahu becomes motherly towards you, she is the mother who will go against the world to protect you. And the second thing, Rahu here becomes emotional. Rahu here thinks emotionally rather than thinking practically. So just think, सबसे बड़ा जज कौन है? Who is the biggest judge? The judge is Yamraj. यमराज से बड़ा तो कोई जज नहीं है. He judges all the karmic account. You die and then you are taken in front of Yamraj. And then Yamraj see whole life of yours and determines where you should go and how your next janma would be, right? यमराज कौन सा प्लैनेट है? राहु है. जब जज आपके प्रति इमोशनल हो जाए, is it good or bad? It is best to have the judge with emotions towards you. आप बहुत बड़ी गलती भी कर दोगे तो अगर जज आपके प्रति इमोशनल है तो जज कहेगा अभी ये छोटा है, अभी बच्चा है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ. तो विद द कैंसर राहु यूजुअली द मदर्स आर वेरी सपोर्टिव फॉर देम. वेरी सपोर्टिव मदर्स ऑफ द पीपल विद द कैंसर असेंडेंट. कहीं ना कहीं माँ सपोर्ट करती है. माँ ना करे तो बाहर वाले सपोर्ट करते हैं. कोई ना कोई लाइफ में इनको सपोर्ट करता है ड्यू टू द ओल्ड इमोशनल कनेक्शंस. सो राहु के लिए एक्चुअल में बेस्ट साइन जो है वो कैंसर है, ना कि कोई और साइन. अगर आप वर्गो कहोगे तो वहां अब देखो, राहु को अगर एक शब्द में समझना हो, इफ देर इज ओनली वन वर्ड फॉर राहु, दैट वर्ड इन इंग्लिश वुड बी मैग्नीफायर. द मैग्नीफाइंग ग्लास इज राहु. किसी चीज को एक्सपैंड करना है, किसी चीज को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाना है, इनफाइनाइट करना है, वो राहु है. अब वर्गो में, वर्गो इज अ साइन ऑफ फाइट्स. His मूल त्रिकोणा, he will try to prove himself right by fighting. That is what Rahu will magnify there.
Rahu in Aries will magnify your ability with your head, your ego. Ego is head, right? So Rahu in Aries makes the person egoistic. Then Rahu in Taurus will expand your resources, will expand your finances, will expand your family. So usually people are having very big family, and then the later the family is split हो जाता है family में, क्योंकि Ketu will be looking at the Cancer sign. So again, everything is very well connected if we take Rahu Ketu together, which is not the topic of today, but I'm just giving you a point of view to understand. Then Rahu in Gemini will expand your communication skills, because that is why the people with Rahu in the third are very good writers. They're very good with debating. They'll debate with you guys, and they have the best convincing power. Okay, they'll convince you for whatever they want, by hook or crook, because Gemini is a sign of lies. So this makes a person very fine liar, like a very fine liar. Then Gemini ke baad we are skipping the Cancer sign, which will actually magnify the emotional level, will magnify the luxuries, your comforts. Okay, it will magnify your comforts. Now, who doesn't need comfort? Everybody needs comfort, right? And remember, fourth sign is the only sign जिसके अंदर negative कुछ भी नहीं है. Do you see anything negative in your mom? That is why it is the first moksha triangle का पहला घर है वो. मोक्ष ट्रायंगल का जो पहला द्वार है. Do you know there are 3 gates to everything? You have 3 dharmic gates, you have 3 arthic gates, you have 3 kama gates, and then you have 3 moksha gates. ये जो 3 gates हैं, ये different level पर काम करते हैं. So the first moksha triangle is actually the moksha of the physical being. That means the moksha will come after seeing all the luxuries. So in the fourth Rahu, it will give you luxuries, it will give you comforts. And no mother wants bad of a child. So अगर कैंसर का राहु है, you guys are lucky. मेरे एक गुरु हैं जो हमेशा कहते थे कि कर्क का राहु सबसे बढ़िया है, और आज मैंने आपसे वो बात डिस्कस की, और इसमें रेफरेंसेस बहुत बहुत डीप जगहों पर रेफरेंसेस पड़े हैं. नेक्स्ट इज लियो. नाउ लियो इज शासन करता. Fourth Rahu also. So no, not fourth Rahu. We are taking signs only. अभी हम signs ले रहे हैं, ठीक है? Because Rahu will take over the signs qualities and not the qualities of the house. House is just where it's gonna work and expand. ठीक है? But it will actually take over the quality of sign first, because host specific है, वायरस है, एक मोबाइल है, मोबाइल इज अ साइन. अब उस साइन में चलने वाला जो सिम कार्ड है वो राहु है, ठीक है? सो सिम विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू राहु. That means any number you dial, the number is gonna be manipulated by Rahu, no matter what number you dial from it. ठीक है? You might feel like that you are the one dialing the number, but it's actually the Rahu which is manipulating it in middle. That is the best part about Rahu. Okay? Now Leo. Now Leo is already Shashan Karta, right? Leo is already the place of a king, but when the king is getting taken over, it's not a really good place for Rahu. I mean, it's a good place for Rahu, but then the sun will suffer. बिकॉज सच्चे राजे की जगह पर एक मैनिपुलेटेड राजा बिठा दिया गया है, या कह लो कि किसी के कांधे पर रख करके बंदूक चलाएगा अब ये राहु. बात तो सूर्य की लगेगी, लेकिन रिजल्ट राहु के आएंगे. इन वर्गो इट्स गोना एक्सपैंड योर रोग, ऋण, शत्रु, बट रिमेंबर इट्स ऑल्सो गोना मेक यू विन ओवर इट. बट टू मेक यू विन ओवर समथिंग, इट विल फर्स्ट क्रिएट इट. रोग लाएगा, फिर आपको रोग से मुक्त कर देगा. ऋण लाएगा, फिर आपको ऋण से मुक्त कर देगा. शत्रु लाएगा, फिर आपको शत्रु से मुक्त कर देगा, बिकॉज ही हैज टू प्रूव हिज क्वालिटीज देयर. दैट इज हिज ऑफिस, राइट? वेयर डू यू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ? डू यू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ एट होम, और डू यू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ एट योर ऑफिस? Nobody tries to prove themselves at home, right? They're like, whatever it is. But at office, you are at best. You try to prove yourself. And when you try to prove yourself,
that is when you use your maximum strength. So the most exhausted Rahu is also in the Virgo sign. That means you will see that Rahu is exhausted there. I'll not go in depth of Rahu today because the conjunction is our topic, but I'm just making you understand basics about Rahu first. So जब हम conjunction करेंगे, I'm not going to explain you the houses today. You will automatically take the houses by yourself. Or maybe we'll do, I don't know how this class goes with the flow, right? Now in the Libra sign, it will actually expand the partnerships. And remember, with the Libra, what's the problem with Libra? That Libra is takdi. So Rahu actually has to expand A and then expand B because it has to equalize it. So very mixed results of Rahu are seen in the sign of Libra. Because we have to actually calculate कि इस टाइम पर राहु A तकड़ी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि B तकड़ी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है. Now it is all on degrees of Rahu and I'll not go in the detail of that, but this is just a point of view which you can research by yourself. Then in the Scorpio, Rahu actually becomes revengeful because Scorpio is a sign of revenge, and now the revenge is given, like the authority of the revenge is given to Rahu. Do you think Rahu is a bad planet? राहु ने कोई छल कपट किया कभी? नहीं किया सर. Okay. राहु ने कभी कोई छल कपट किया? Anybody else? अमृत पाने के लिए वो किया। छल किया उसने? हाँ, उसने अपना वेश बदला था। नहीं, उसने गलत किया कुछ उसमें? नहीं, गलत तो नहीं। Rahu It has should be never, for both. Rahu has never ever did anything wrong. He just, the only thing that he did wrong was taking a base of a Brahmana. That means he tried to disguise himself as Guru. That is the only mistake he did. Otherwise he did nothing wrong. जिस अमृत को उसने पिया उस पर उसका हक था. He was promised कि समुद्र मंथन में जो निकलेगा आधा तुम्हारा आधा हमारा. और उसे तो कुछ भी नहीं मिला. ना उसे लक्ष्मी मिली, ना उसे क्या कहते हैं इरावत हाथी मिला, ना उसे हीरे जवाहरात मिले, ना उसे कछुआ मिला. उसे मिली मदिरा जिसकी कोई एक्चुअल में सेंस थी नहीं. तो ही सेड कि इतना कुछ निकला भैया, एंड पे मुझे मदिरा दी. So he confronted, he tried to grab the Amrita, but he was never given it, although he was promised about it. So he disguised himself as a Brahmana and then went there and had that particular Amrita, and after that he was cut into two parts. Now remember, do you know ये सारा का सारा जो scenario है, इसमें जज कौन थे? To decide the things, Vishnu ji. No, he was Lord Shiva. At The the Lord end. Shiva actually told Lord Vishnu that, you know, if you have to save this thing, then आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और वो देवों से अकेलों से नहीं होगा, तुम्हें दैत्यों की सहायता लेनी पड़ेगी, और मेरा ये वासुकी तुम्हें इसमें मदद करेगा, right? So then the story continues. I don't know if you guys know this story or not. Then the Rahu went to Lord Shiva. He said, you were the one who was at the level of judgment, and आपके सामने मुझे मेरा हक नहीं मिला. That was so strange for Rahu. And then Lord Shiva blessed him. Okay, I'll not go in that story abhi, but then Lord Shiva blessed him. But एक सूत्र आपको एक टिप दे देता हूँ. If you are the worshipper of Lord Shiva, the Rahu will not disturb you in this life. The more you are connected to Lord Shiva, the less the Rahu will give problems to you. So most of the remedies for Rahu is actually coming to go to Lord Shiva. So when the Rahu becomes revengeful, you need to worship Lord Shiva. And remember, it is actually becoming revengeful in the sign where the moon gets debilitated. So strange. And it is getting exalted in the sign where actually the moon is getting exalted.
द टॉरस. आई डोंट नो, फ्यू पीपल ऑल्सो से दैट जेमिनी में एक्सॉल्टेशन होती है. देयर इज अ डिबेट अबाउट इट, विल डू इट लेटर सम अदर डे. ठीक है. सो चंद्र के साथ राहु का गहरा संबंध यहां से दिखता है कि जहां राहु सबसे ज्यादा रिवेंजफुल होता है वहां चंद्र वीक हो जाता है, और जहां राहु बहुत स्ट्रांग होता है वहां चंद्र भी बहुत बलवान होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज राहु इन सेजिटेरियस. इट्स गोना मेक यू फाइट फॉर लिटिल थिंग्स, फाइट फॉर धर्मा, यू माइट फाइट फॉर रॉन्ग थिंग्स. यहां पर आप एक्चुअल में ब्राह्मण का भेष बना करके अमृतपान करने जाते हो, जिसमें आप शायद गलत कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ इतना गलत कर रहे हो कि तुम जिसका भेष बना रहे हो वो बहुत ही प्योर चीज है. शायद वो चोर बनकर गया होता तो उसे आधा ना काटा जाता, क्योंकि वो चोर का काम था चोरी करना, लेकिन ब्राह्मण का काम वो नहीं था. कैप्रिकॉन में जब राहु चला जाता है तो वो आपके वर्क को एक्सपैंड कर देता है, वर्क को मैग्नीफाई कर देता है, रेपुटेशन को मैग्नीफाई कर देता है. अब अगर तो ये अच्छा है, अब अच्छा और बुरा है वो कैसे पता लगेगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज एक्वेरियस. एक्वेरियस इज हिज ओन हाउस. नाउ व्हाई एक्वेरियस इज हिज ओन हाउस? व्हाई एक्वेरियस इज अ साइन ऑफ राहु? राहु could have had any other sign, but he got Aquarius. Now this is your homework to find out. But here Rahu actually expands everything that you truly needs. Remember, okay, I know you won't be able to find it with the homework, so I'm just gonna make it easier for you. 11th house is a house of desires, and Aquarius is desires, and Rahu is something known as the planet which is fulfilling your desires and the desires of your past life. So the reason of your true birth is coming from Rahu. जहां पर भी आज की डेट में आपका राहु है वो आपके पिछले जन्म की अधूरी इच्छा है और आपको मिल रही है. यानी कि जिनकी इच्छा है कि मुझे किसी चीज का बदला लेना है, उनका राहु स्कॉर्पियो में चला जाएगा. जिसकी इच्छा है कि मुझे बहुत पैसा बनाना है, उसका राहु टॉरस में चला जाएगा. जिसकी इच्छा है कि मुझे सबसे बड़े अच्छे रिलेशन रखने, सबकी ब्लेसिंग्स लेनी है, सबको खुश रखना है, सबसे खुश रहना है, उनका राहु पुष्य में चला जाएगा. अब मैं नक्षत्रों पे चला जाऊंगा तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे, लेकिन मैं जा नहीं रहा. नेक्स्ट इज राहु इन पाइसेस. नाउ पाइसेस इज रेपिटेशन. यहां चक्रों में डालता है राहु. एक चक्कर खत्म नहीं होता, दूसरा चक्कर शुरू हो जाता है, बिकॉज यहां अब्रॉड भी लेकर जाता है राहु. यूजुअली अब्रॉड सेटलमेंट. So Rahu 12th say you're gonna go abroad. तो अब आते हैं चंद्र के ऊपर. चंद्र क्या है? हमने राहु पढ़ लिया क्या है. राहु सबको समझ में आ गया. एक शब्द में राहु मैग्नीफाइंग ग्लास है, जहां जाएगा उस चीज को एक्सपैंड कर देगा. चंद्र क्या है? चंद्र आपका मन है. Who are you? If I ask you who are you in one word, you could say I am Chanda, I am Sejal, I am Vaibhavi, I am Dipti, I am Samrad, I am Suveksha, I am Anmol, I am whatever, but that is just a name of your body. Right? In next life your body is going to change the name. Maybe in the past life your body was called something else. And maybe your body is known as different persons in front of different people. चलो यहाँ पे एक सूत्र बता देता हूँ. नेम चेंज. यदि आपका केतु का संबंध बुद्ध के साथ बने तो दुनिया आपको दूसरे नाम से जानेगी. यानी कि जो आपका नाम होगा उस नाम से नहीं, किसी और नाम से जानेगी. कोई छोटा नाम भी होगा आपका. सो चंद्र आपका मन है. आपका मन ही आपके जीवन को बनाता है और आपका मन ही आपके जीवन को खराब करता है. चंद्र खुशी का कारक है. किस चीज का कारक है? खुशी का कारक है. जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो चंद्र है. तो अब याद रखिएगा, जहां आपका चंद्र होगा वो पार्ट ऑफ लाइफ से आपको खुशी मिलेगी. चंद्र 2nd हाउस में होगा, फाइनेंसेस से खुशी मिलेगी, फैमिली से खुशी मिलेगी. चंद्र 4th में होगा, मम्मी से खुशी मिलेगी, व्हीकल से खुशी मिलेगी, घर से खुशी मिलेगी. चंद्र 5th में होगा, बच्चों से खुशी मिलेगी, क्रिएटिविटी से, ऑकल्ट साइंसेस से, एस्ट्रोलॉजी से. और जहां चंद्र देखेगा, 7th फ्रॉम मून इज योर डिजायर. वो चीज आपको चाहिए.
10वें घर में चंद्र होगा, आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए। 8वें घर में चंद्र होगा, आपको पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए, वेल्थ चाहिए, अकमुलेशन ऑफ थिंग्स चाहिए। जहां चंद्र देखता है फ्रॉम द 7th दृष्टि, दैट इज वेयर योर डिजायर विल बिल्ड इन लाइफ। अब चंद्र का मिलन हो गया राहु के साथ, यानी कि आपके मन को कंट्रोल करने लग पड़ा एक वायरस, वो है राहु। जब राहु ने चंद्र को टेक ओवर किया तो क्या होगा? सबसे पहले माइंड एक्सपैंड हो जाएगा। जहां से लोग सोचना खत्म कर देते हैं, वहां चंद्र राहु सोचना शुरू करता है। और यही वजह है, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो लोग ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पागल वो इंसान नहीं होता जो कम सोचता है, पागल वो इंसान होता है जो ज्यादा सोचता है। पागल वो इंसान है जिसको थोड़ा ज्यादा पता है। अभी एग्जांपल ले लो, आपको रेडियो की तरंगें पकड़नी शुरू हो जाओ, आप किसी तरीके, आपको अभी यहां जहां मैं बैठा हूं, जहां आप बैठे हो, 1000 रेडियो की तरंगें निकल रही हैं, लेकिन हमारी एबिलिटी नहीं है कि हम उस रेडियो की तरंग को पकड़ सकें। लेकिन अगर आप पकड़नी शुरू कर दो तो आप तो पागल हो जाओगे। That is just an extra thing that your mind will give you, your extra ability to actually catch the radio waves. But if you actually get it, you're going to be declared as a mental patient because you have something extra. But if I just take over some ability from you, let's just take over your आंखें ले लें अगर हम आपसे, तो आप पागल नहीं होगे, सिर्फ ब्लाइंड होगे। And people will actually support you, people will actually help you, people will actually have sympathy towards you. But the Chandra Rahu, they don't have sympathy. The Chandra Rahu gets no sympathy. They say ये तो पागल है, ये तो वेल्ला है, ये तो सोचता ही बहुत है। So your mind is actually expanding every day. तो आप ओवर थिंकर बन रहे हो। अब ओवर थिंकिंग करनी नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग ये करवाएगा। अब किस पार्ट ऑफ लाइफ में कराएगा, ये डिपेंडिंग ऑन साइन है। टॉरस में आ गया तो आप बस पैसा कमाने का तरीका सोचते रहोगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सोचते रहोगे, फैमिली के बारे में सोचते रहोगे। कैप्रिकॉन में आ गया, आप सारा दिन नए काम के बारे में सोचोगे, मैं ये काम कर लूं, मैं ये काम कर लूं, मैं ऐसे काम कर लूं, मैं वैसे काम कर लूं। और कैप्रिकॉन, बिकॉज इट इज अ कर्मा, तो राहु विल एक्चुअली एक्सपैंड योर कर्मा एंड मेक यू डू द वर्क। इसीलिए कहते हैं जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में, because that person is actually ready to work. Okay, and by the cycle of Rahu, remember, by the cycle of Rahu, Rahu moves opposite in the houses. It is retrograde always, right? So by the cycle of Rahu, it is actually sitting second to itself, which is accumulation. And second is a sign where he actually goes in exaltation. So the second to itself in the Capricorn, Rahu actually gives you very good results. But the only problem here is that it is going to look at the sign of Virgo. He's going to look at his office and he's going to look at his family as well, to the second sign. Now when he's going to look at his family and the office at the same time, यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है? आप एग्जांपल ले लो, आप ऑफिस में बैठे हो लेकिन घर के बारे में सोच रहे हो, और आप घर पे बैठे हो लेकिन ऑफिस के बारे में सोच रहे हो। So these people actually face this trouble that when they are home, they are actually having the office in their head, and when they are in office, they are actually having the home in their head. Now it is, home and office is just a metaphor. It simply means when Rahu is placed in Capricorn, it is not living in the present moment. Whatever the Rahu is getting there, it is actually thinking about something else. That's the Capricorn Rahu. Now when the moon is coming with it, remember 10th sign is a sign of your karma, your work, your reputation. Now the moon is the fastest moving planet. So your reputation will move very quickly. One day you'll be king and one day you'll be servant.
One day you will be having a respect of a king, and other day you'll be having a respect of a beggar. And the cycle is gonna keep changing for you. And because it is the 10th sign, you're gonna change your career path. Your mind is not gonna be stable at one point. He's gonna change his career path. कई लोग इसको ग्रहण योग भी कहते हैं. चंद्र और राहु ग्रहण दोष है, लेकिन याद रखना एक्चुअल में ग्रहण दोष चंद्र राहु नहीं है. ग्रहण दोष चंद्र केतु है. केतु इज अ प्लैनेट जो चंद्र को ग्रहण लगाता है, और राहु इज अ प्लैनेट जो सूर्य को ग्रहण लगाता है. Now the results of the moon and Rahu are actually gonna depend on two more factors. And those two factors are the factors which are neglected by the 99.99999% of astrologers. And the first factor is it day birth or night birth? If it is the day birth, the Rahu Chandra is gonna give you totally different result. If it is night birth, the Rahu Chandra is gonna give you totally different result. And the second factor is शुक्ल पक्ष का चंद्र है कि कृष्ण पक्ष का चंद्र है. If the moon is waxing, that means the moon is actually growing. That means this Chandra is having the support of Jupiter, Surya, because they are the light oriented planets, and the Mangala. This is the Shukla Paksha. If the moon is actually waxing and it is with Rahu, that means the moon is having the support from Sun at behind, the Jupiter at behind, and Mars at behind. And remember, the Mars is important to control Rahu. And Jupiter is important for guidance. So these people will usually become good guides. And the Mars will remain in control, so that overthinking is gonna remain in control. And the Surya is actually gonna give them a shine. But remember, this shine will also be shadowed. तो जितना डिजर्व करेंगे उससे थोड़ा सा कम राइज करेंगे. जहां उनको 500 मिलना चाहिए वहां उनको 450 मिलेगा. लेकिन स्टिल यहां पर जो नेगेटिव मेलेफिक्स इफेक्ट्स ऑफ द राहु हैं वो कम हो जाएंगे. Because the Chandra is actually getting stronger. And remember, when the mind is getting stronger, the thing which is actually taking over it is also gonna get stronger with it. But then there are two facts. I'll give you an example of when your mind is actually gonna get takeover of something. Have you ever tried alcohol? Nobody have tried alcohol. चलो हम राहु की बात कर रहे हैं. So when you actually try alcohol or when you are under the influence of a drug, you see yourself as two people. One is the drug which is overtaking you, and one is a voice inside you which is saying सब ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ. When you actually go your home, for example, you got drunk and now you are going home and your parents doesn't know that you are drunk, your mind actually says the Rahu, the alcohol, that you should suppress it, कि दिखनी नहीं चाहिए. तो वो कमरे में भी जाते हैं, हाँ जी मम्मा मैं आ गया, पापा मैं आ गया, खाना भी खाएंगे, उसके बाद अपना जाके. सो दैट व्हेन द माइंड इज एक्चुअली गेटिंग स्ट्रॉन्गर, जब शुक्ल पक्ष है तो वो जो आवाज है वो स्ट्रांग है, और जब वो आवाज स्ट्रांग होती है वो राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स को सप्रेस कर देती है. सो शुक्ल पक्ष एंड राहु, इट इज गुड. सो राहु चंद्र शुक्ल पक्ष में बुरा नहीं है. But in the Krishna Paksha, it is a different. In Krishna Paksha, the Saturn, Venus, and Mercury are the planets which are actually supported. Now the problem is that in the house of Mercury, in the house of Moon, the Mercury goes in the Maran Karaka Sthana, in the 4th house. So the Mercury actually denies to work here, but Mercury is controlled by Rahu. So यहाँ वो अल्कोहल की आवाज़ ज़्यादा है, और आपकी जो पीछे से अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, आप घर आ गए, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, बाहर जितना मर्जी जैसे रहा, वो आवाज़ कम हो जाएगी. सो हियर द माइंड इज एक्चुअली गोना बी टेकन ओवर बाय द अल्कोहल, बाय द राहु. एंड बिकॉज सैटर्न इज कर्मा, योर माइंड विल वर्क अकॉर्डिंग टू द राहु.
Now, when the mind will work according to the Rahu, what will happen? You will think what Rahu is making you think. And Rahu has no limit of thinking. So your mind is actually gonna go. But if it is a Shukla Paksha, you know when to stop. The pause button is in your hands. One day you will get a chance to stop it. But if it is Rahu, Kishan Paksha, you will not have that button. That button is in the hands of Rahu. It is in his choice of his timing when he will choose to stop it or if he will never choose to stop it. And then we have the day birth and the night birth. If it is a day birth, the planet Surya, Guru and Mangal is more active. If it is the day birth, the moon is not there. The moon is like the combust moon. The moon is like, you know what is combustion? I'll give you a simple भाषा में combustion समझनी हो तो ये एक बल्ब है. बल्ब कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे ना बल्ब. ये एक बल्ब है, ये 100 वॉट का है. ये मून है. अब सूर्य है, ये बड़ा बल्ब है, ये 1,00,000 वॉट का है. इसकी रोशनी के आगे इसकी रोशनी दिखेगी? नहीं दिखेगी. इसीलिए कंबशन हो जाती है. दैट इज नोन एज अस्तांगता. अस्त हो गया, प्लैनेट दिख नहीं रहा जी. तो डे के टाइम पर द मून इज एक्चुअली अस्ता. The mind is asta. When do you overthink? Ever noticed when do you overthink? You overthink at night. Most of the people overthink at night, not at the day. जब आप रात को सोने जाते हो तो उस टाइम पर आपका माइंड सबसे ज़्यादा ओवरथिंक करता है. सारा दिन एनालाइज करते हो सब कुछ ABC whatever. During the day you overthink less. Because during the day, the sun, the light is already there. Do you need to think about something when the thing is right in front of you? You don't have to think about it. You just see and you analyze it. So, remember this thing. The daytime starts at sunrise, sir. So, from sunrise to sunset, the moon is acting like Ast planet. Now, when the moon is acting like the Ast planet, these people mind abilities are actually gonna be suppressed by Rahu. तो डे बर्थ में उतनी क्रिएटिविटी, उतनी एक्सपेंशन ऑफ माइंड नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए. और अगर मिल भी जाती है तो उस लेवल की रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती. On the other hand, if it is night birth and your Rahu and Moon is in the feminine sign, this is very, very, very good thing to have because the feminine energy is more active at night. Chandra and Venus. And by chance it is Shukla Paksh or Purnima. That is one of the best Chandra Rahu conjunction you can have. Now, Chandra Rahu is not a bad conjunction to have. And if it is a night birth, your mind is already having a lot of knowledge and Rahu will keep expanding it. Rahu will keep questioning your knowledge and then you will keep expanding your knowledge. Remember one thing, Chandra Rahu should not be suppressed. Do you know Rahu is the only planet which you cannot suppress? राहु को आप सप्रेस करके ठीक नहीं कर सकते. ठीक है, राहु ऐसा प्लैनेट है, अगर राहु की किसी ने स्कूल में, राहु वो बच्चा है, अगर उसकी झूठी कंप्लेंट लग गई ना कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है, तो वो टीचर के सामने थप्पड़ मार के कहेगा अब मारा है, पहले नहीं मारा था. ठीक है, बिकॉज ही डजंट लाइक द लाइज. सो राहु को पता नहीं किसने कह दिया लायर है. राहु डजंट लाइक द लाई. राहु इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. राहु इज लाइक भाई मेरा हिस्सा है, मेरे को दे दो. इनफैक्ट ही विल कॉम्प्रोमाइज टिल लास्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट तक राहु ने वेट किया. चल अभी उन्होंने ले लिया, बाद में देंगे. चल अभी उन्होंने दे दिया, बाद में देंगे. लेकिन जब नाक के ऊपर से पानी चला गया, देन ही हैड टू डू हिज ओन थिंग इन हिज ओन वे. सो यू कैनॉट एक्चुअली सप्रेस द राहु. राहु कैन नॉट बी सप्रेस्ड. सो द रेमेडी फॉर राहु इज एक्चुअली यूजलेस. Okay, and when it's the night birth, so I was at suppression. Okay, do you know Adolf Hitler? He had this yoga.
एंड एनीबडी नोज एडोल्फ हिटलर क्या बनना चाहता था? आर्टिस्ट पेंटर. Yes, he was a very good painter. If you go find the paintings of that particular person, he was a great painter. He wanted to become the painter, but he suppressed his Rahu. Somebody suppressed his Rahu, and then we all know what Adolf Hitler did to the world. So, people with this conjunction should not suppress their emotions, should not suppress whatever abilities they have. If they will suppress it, they will not be able to because देखो राहु ऐसी चीज है, आप इधर से दबा दोगे उधर से बढ़ जाएगी. तो अगर उसकी पॉजिटिव कहीं जा रही है एनर्जी, तो उसको जाने दो. अगर आपने उसको कहीं रोक दिया तो माइंड उसको नेगेटिव हो जाएगा और वो दूसरी तरफ एक्सपैंड कर जाएगा, नंबर लाइन के इस तरफ, जो कि नेगेटिव पार्ट है. तो हमें इधर एक्सपैंड नहीं करना है. एंड द पीपल विद द मून एंड राहु आर वेरी गुड माइंड मैनिपुलेटर्स. Why are they very good mind manipulators? Because the Rahu knows how to manipulate. And every day they are different person. They are very good at disguise. Rahu makes their mana disguise. इनके मन में क्या चल रहा है? Nobody knows. चंद्र और राहु. Do you want me to cover it in all the houses? Or you got it? Do you understood it? अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था? किसी को ये वे में चंद्र राहु पता थे? Did you guys considered day, night, शुक्ला, कृष्णा? हाँ जी पापा will add something. नहीं, मैं ऐड नहीं करूँगा, मैंने पूछना ही है. जिस तरह से बताया कि अगर रात का बर्थ होता है और दिन का बर्थ होता है तो चंद्रमा जो है वो इफेक्ट होता है. तो इसी तरह से क्या लगन जिस नंबर से स्टार्ट होता है? यस. लगन किस नंबर से स्टार्ट होता है और राहु का और चंद्र का इससे संबंध, ये आप जानना चाहते हो, राइट? सो हु इज ऑन द तख्त? लग्न इज इक्वल टू तख्त. तख्त यानी के राजे का सिंहासन. यदि राजे के सिंहासन के साथ राहु कंपैटिबल है, यस, इन लोगों को यही बताने के लिए मैं क्वेश्चन मैंने पूछा है कि वो चीज भी इम्पोर्टेंट है. हाँ, अगर राहु आपके लगन के साथ, तख्त के साथ, राजे के साथ कंपैटिबल है, तो भी चंद्र राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता. लेकिन अगर वो तख्त के साथ कंपैटिबल नहीं है और आपका नाइट का बर्थ है, शुक्ल पक्ष का बर्थ है, फिर भी वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है. और राहु यदि खुद लगन में आ जाए, यदि राहु खुद लगन में आ जाए, तो वो सूर्य की एबिलिटीज को टेक ओवर कर लेता है, सन के जैसे रिजल्ट देता है, लेकिन जहां पर सन होता है वहां के रिजल्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. बिकॉज देयर कैन बी ओनली वन किंग. अब तो कौन कौन से इसके फेवरेबल हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, वो भी आप बता दें. हाँ, तो फेवरेबल साइंस फॉर राहु स्टार्ट्स फ्रॉम टॉरस, देन इट इज जेमिनी. ओके, सी फेवरेबल के लिए बड़ा सिंपल है, आपको मैं फ्रेंडशिप्स निकालनी सिखाता हूँ. ये दो टीम्स हैं, ठीक है? दो टीम्स हैं. अगर हम फुटबॉल खेलते हैं, हम बैडमिंटन खेलते हैं, हम चेस खेलते हैं, जो भी करते हैं, देयर आर टू पीपल, राइट? देयर आर टू ओपोनेंट्स. सो द फर्स्ट पर्सन हियर इज शुक्रा, दैट इज अ दैत्य गुरु शुक्रा, and the second guru we have is the Jupiter, that is Dev Guru Brahaspati. And now both of them have their own teams, they play with their own teams. Okay, the Saturn has the first person, which is Saturn comes in the team of Venus, and the Sun comes in the team of Jupiter. Then the Mars come in the team of Jupiter, and Rahu and Ketu comes in the team of Saturn. The Moon also comes here, and the Mercury is actually Dicey, he is with both of them. So जो तो ये वाले लगन है, 9 नंबर लगन है, 12 नंबर लगन है, 5 नंबर लगन है, 1 नंबर लगन है, 8 नंबर लगन है और 4 नंबर लगन है, तो ये लगन में राहु अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके दोस्त ये हैं. ठीक है?
तो 2 नंबर लगन, 7 नंबर लगन, 11 नंबर लगन, 10 नंबर लगन, 3 नंबर लगन और 8 नंबर लगन। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी आएगी। 8 नंबर लगन एक्चुअल में केतु सपोर्ट कर रहा है कि मंगल सपोर्ट कर रहा है? इज मार्स मोर पावरफुल इन द कुंडली और केतु मोर पावरफुल इन द कुंडली? इफ द केतु इज मोर पावरफुल इन द कुंडली, then the 8 number sign will actually become the feet of Rahu. The 8 number sign will actually become the feet of Rahu. हाँ जी दीप्ति जी, have a question? सर इसे प्लीज रिपीट कीजिए। देखो, 2 लगन डाइसी लगन होते हैं, एक 8 नंबर लगन और एक एक्वेरियस असेंडेंट। ये दोनों असेंडेंट में हमें देखना, डिटरमाइन करना होता है कि लग्नेश राहु है या शनि है एक्वेरियस के केस में, और 8 नंबर लगन में लग्नेश मंगल है कि केतु है। We have to determine by the strength of both of the planets. If the Ketu is in more strength, then the 8 number ascendant will be given to Ketu. If the Mars is having more strength, then 8 number lagna will be given to Mars. And if by chance the Ketu is stronger here, then the 8 number Takhta will actually become the feet of Rahu and 7th house will become the head of Rahu. Because see, the feet of Rahu is actually Ketu. The lower part of the body is Ketu. That is, if the 8 number is a Lagna, then that particular house will be considered as the feet of Rahu and the head will be always in the 7th house. दीप्ति जी ये जानना चाहते हैं कि फिर अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा? अगर तो केतु है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहु सप्तम के अंदर सिर लेकर बैठा है, उसके पैर, लेकिन यहाँ याद रखना, यहाँ आदमी उल्टा टंगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उल्टे आदमी के प्रॉब्लम आएगी। गलत तरीके से काम होंगे आपके, सही तरीके से काम नहीं होंगे, ठीक है? और यदि एक्वेरियस है तो फिर सही तरीके से काम होंगे, फिर गलत तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके? And the relationships are usually challenged when the 8 number sign is ruled by Ketu. Got it? So, this is how the Lagna comes into the play. कहने का मतलब ये है कि जो राहु के फेवरेबल लग्नास हैं, अगर उसमें चंद्र राहु का कनेक्शन बनता है तो एक तरह से कारक बन जाता है राहु। हाँ, राहु कारक हो जाएगा उस कुंडली का। ठीक है, चलो अभी हम फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस के मैं कुछ फटाफट आपको पॉइंट्स बता देता हूँ विच यू गाइस कैन नोट डाउन। हाँ जी, यस, डू यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, so I have a question regarding to this Moon Rahu conjunction. So I had a distant relative. He was an engineering student, but he couldn't complete. His Moon Rahu is in 11th house in Cancer sign. Isn't in this case he should be like good in engineering, or he's a Gemini, Virgo ascendant with the Jupiter and Saturn together. So that is the only point, Jupiter and Saturn. Where is Sun? Sun is in 9th house with Mars So that in is a Taurus. day birth. Yes, birth. evening night birth. Yeah, night birth. This is day birth. Let's see. Yes, yeah, 2 o'clock in the afternoon. Yeah, right after 2. Right. Yeah, so ये 2 से 4 टाइमिंग ही 9th हाउस में सूर्य की पड़ती है ना। बेसिकली 2 से 4 यहाँ Right. पड़ता है, ये 4 से 6 पड़ता है एक्चुअल में। Okay. ठीक है, बट चलो आई नॉट गो। ये जो गुड एस्ट्रोलॉजर है ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर याशिर Yes. अनमोल के आगे आप एक जरा सा भी गलत बोलोगे तो पकड़ लेगा। जी, जी. यदि सूर्य 9th हाउस में है तो नाइट का बर्थ हो ही नहीं Yeah, right, सकता। right. नाइट Yeah, I'm बर्थ कैसे हो sorry. सकता है? दिस इज डे बर्थ, It's a day birth, right? राइट? Yeah, एंड afternoon. ये Yeah. शुक्ल पक्ष का जन्म है। Yes, Shukla So Panchami. with the शुक्ल पक्ष जन्म, this sign is not good. Virgo is not good. Okay. The Virgo is not good for the Shukla Paksha Janma. It is good Okay. for the Kishan Paksha Janma. Do you know about the theory Oh. of Pakshas? Or you want me to go in detail about it? I can tell you in 1 minute. बहुत simple है. Yeah. Remember, Yeah, go ahead. the Paksha decides the chart. The Paksha decides the chart. Consider this as a Shukal Paksha, this as a Kishan Paksha. If you took birth in Shukal Paksha, the Jupiter, Sun, Mars and Chandra will become positive for you. Now if by chance they are negative in your chart, they will turn positive for being negative. Okay.
दे विल टर्न पॉजिटिव फॉर बीइंग नेगेटिव. दैट मीन्स एग्जाम्पल ले लो, मेरी ड्यूटी लगी है किसी को मारने की, ठीक है, माई ड्यूटी इज टू किल समबडी. नाउ माई ड्यूटी इज नेगेटिव, but I will be positive towards my duty. I will fulfill my duty. So if by chance in the Shukla Paksha these planets are placed negative, they will surely give you the negative results. Okay. And if these planets are positive, they will surely give you the positive results, because that is what their duty is all about. Okay. Okay? And this is the Janma of Krishna Paksha. If you by chance took the Krishna Paksha Janma, these planets will automatically become more strengthened. Right. Okay, so if you by chance have Venus Lagna, that is Taurus or this sign, and you have Night Janma and it is a Krishna Paksha, this is Raj Yoga. You will have a lot of money, a lot of pleasures. Okay, and these people, if they by chance are negative and they are the Krishna Paksha Janma, they will be negative towards being positive. So they will be positive for being negative. Okay. Okay, तो वो प्रॉमिस करेंगे कि हम नेगेटिव रिजल्ट देंगे. तो जन्म किस पक्ष का है उसके अकॉर्डिंग आपका लगन अगर सेट नहीं है तो आपकी कुंडली वैसे ही थोड़ी घूम जाएगी, क्योंकि उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी. जैसे कि कृष्ण पक्ष के जन्म में वर्गो असेंडेंट बहुत अच्छा था, लेकिन शुक्ल पक्ष के जन्म में वर्गो असेंडेंट अच्छा नहीं है. Okay. ठीक है, तो किस पक्ष का जन्म है और कौन सा असेंडेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है. बेसिक्स हैं और ये अच्छे वाले बेसिक्स हैं. हाँ जी सीमा जैन जी पूछो. Thank you. Thank you. सर जैसे मेरा पूर्णिमा के बाद का प्रतिपदा का जन्म है, तो हमेशा लैपटॉप पे तो कृष्ण पक्ष का आता है, तो हम इसे शुक्ल पक्ष का मानेंगे या कृष्ण पक्ष का? देखो लैपटॉप पे क्या आता है, आई डोंट केयर अबाउट सॉफ्टवेयर्स. तो अगर आपका पूर्णिमा के जस्ट बाद का जन्म है तो ये हाँ जी, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का का। जन्म है, कृष्ण पक्ष की हम्म, प्रतिपदा का जन्म है. यानी कि ये तिथि कौन रूल करता है, ये तिथि शुक्र रूल करते हैं. ठीक है, अब तिथियां कौन कैसे, अष्टमी राहु रूल करता है. यदि अष्टमी का जन्म है तो राहु बलवान हो जाएगा. यदि प्रतिपदा का जन्म है शुक्र और सूर्य बलवान हो जाएंगे. सूर्य पहले बलवान होगा अगर कृष्ण पक्ष का नहीं है, शुक्ल पक्ष का है. तो हर एक तिथि को एक प्लैनेट रूल करता है और वो उस अकॉर्डिंग वो तिथि बल, उसको हम कहते हैं प्लैनेट के पास तिथि बल है. तो हम शुक्ल पक्ष का नहीं मानेंगे, कृष्ण पक्ष का ही मानेंगे. प्रतिपदा तो कृष्ण पक्ष ही होगी ना, एक तिथि आगे जा नहीं चुका सर, है. कहते हैं ना कि पूर्णिमा के मतलब 6-7 दिन तक पूर्णिमा का असर रहता है. ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं। 6-7 दिन तक असर रहता है, फिर उसके बाद तो 6-7 दिन बाद फिर पूर्णिमा आ जाती है. तो 6-7 दिन आगे का असर, फिर 6-7 दिन पीछे का असर, तो फिर तो सारी जिंदगी पूर्णिमा है, अमावस तो आएगी नहीं. So it is not like that. It is that the moon has started losing itself, right? And when the moon has started losing itself, you will start losing a part of your mind. Okay? So ये तिथियां जाननी बहुत जरूरी है कि हर एक तिथि को कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है. तो मेरा जैसे कृष्ण पक्ष का हो गया और वृश्चिक लगन हो गया, तो फिर तो ये अच्छा हो गया. हाँ, वृश्चिक लगन के लिए कृष्ण पक्ष अच्छा हो गया. अब भगवान कृष्ण की चार्ट देखिए, उनका लगन भी 2 नंबर लगन है. तो जो राहु है वो 7th हाउस में आएगा, कृष्ण पक्ष है. और नाइट बर्थ है. नाइट बर्थ है. अब उनके लिए राहु 7th हाउस में इतना अच्छा है, ऊपर से जुपिटर की दृष्टि है. जुपिटर की जो दृष्टि है ना, ये चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, ये दोनों में पॉजिटिव रहेगी, ये याद रख लेना. ठीक है ना. गुरु सपोर्ट कर देता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका बर्थ कृष्ण पक्ष का हो गया तो राहु नेगेटिव हो जाएगा. उनके लिए भी उतना ही पॉजिटिव है अगर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करें तो साथ में. ठीक है, अब भगवान कृष्ण का राहु तो चलो हम पढ़ ही नहीं सकते जिस लेवल का उनका राहु था. द लेवल ऑफ मैनिपुलेशन, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एंड द लेवल ऑफ प्लेइंग अराउंड the same family and a lot of things we cannot understand. सामने 7th हाउस वास्तव में हमारे सामने वाला बंदा है. तो डू यू थिंक कि अगर भगवान कृष्ण के सामने कोई आ गया, आंखों से आंखें मिला ली, वो किसी और का रह सकता है? and that to रोहिणी. ठीक है, and that too of रोहिणी नक्षत्र. that too of रोहिणी.
तो बहुत ये तिथियां आपको पता होनी चाहिए. किसी दिन हम तिथियों पर भी एक वेबिनार कर लेंगे कि तिथियां कैसे मिली, कौन से प्लैनेट को कौन सी तिथि क्यों मिली. सब पता है किसी को तिथियां? एनीबडी नोज अबाउट तिथीज? तो तिथि बल कोई यूज नहीं कर रहा. तिथि बल यूज करना इंपॉर्टेंट है, वार बल यूज करना इंपॉर्टेंट है, गर्भा बल यूज करना इंपॉर्टेंट है. वार बल होता है द डे ऑफ बर्थ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टुक बर्थ ऑन द थर्सडे योर जुपिटर विल बिकम स्ट्रॉन्गर. ठीक है. इवन होरा बल नाम की चीज भी होती है. आपने किस प्लैनेट के होरा में जन्म लिया. यदि आपका जन्म मंगल के होरा में हुआ है तो अलग तरह का रिजल्ट है आपकी कुंडली में मंगल का. और यदि आपका जन्म क्या कहते हैं शनि के होरा में हुआ है और आपका लगन मंगल का है तो लाइफ स्ट्रगलफुली हो जाएगी. मंगल शनि कंजंक्शन हो गया तो बहुत बेसिक्स हैं, बट बेसिक्स आर एवरीथिंग. सो इसी तरह गर्भ बल होता है. द फर्स्ट गर्भ इज रूल्ड बाय सूर्य. यदि आप फर्स्ट चाइल्ड हो तो आपका सूर्य बलवान हो जाएगा ऑटोमेटिकली इगोइस्टिक हो जाओगे, ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग हो जाओगे. सेकंड गर्भ इज जुपिटर. ऑटोमेटिकली गाइड बनोगे, ऑटोमेटिकली दूसरों को सलाह दोगे. ठीक है. तो गर्भ बल, वार बल, तिथि बल, होरा बल. You need to see all the balas as well from the in the kundali. हाँ जी दीप्ति जी, have a question? सर सॉरी गॉट डिस्कनेक्टेड. मुझे वो जानना था जहाँ पे आपने कहा ना लग्नेश कौन है, केतु और मंगल, तो उसमें क्या डिग्री देखेंगे? Why only degree? You will see multiple factors. उसका षडबल देखो, फिर देखो कि वो प्लैनेट की राशि कौन सी है, वो नवमांश में कौन सा प्लैनेट ज्यादा सुधार कर रहा है. ठीक है. तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू फाइंड आउट इफ विच वन इज अ लग्न. हाँ जी सर. ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का. जी ये टॉपिक नहीं है. पहले मून राहु को समझ लें, बीच में लग चले जाएगा अनमोल. इनको ना एक समझाओ कि राहु इल्यूजन है. हाँ, और मैं भी आता जब चंद्रमा इल्यूजन के साथ आ जाता है तो क्या होता है. और केतु जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. केतु जो है वो इंसान को एक्सप्रेशन की भी शक्ति खत्म कर देता है. हाँ. जो मून और केतु के कंजंक्शन है वो अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते. और राहु इल्यूजन है, वो इल्यूजनरी फीलिंग्स ही दूसरों को दिखाता रहता है. इस टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर दो इन लोगों सबसे पहले ऐसे बंदे क्लाउन फेसेस होते हैं. ठीक है. दे आर क्लाउन्स टू कीप अदर्स हैप्पी. दैट इज व्हाट देयर ऑल डॉगमेटिक थिंकिंग इज. एंड देन रिमेंबर वन मोर थिंग. एक कहानी है बड़ी सिंपल. एक आदमी था, मछली पकड़ रहा था और शाम हो गई थी. उसके पास एक बकेट पड़ी थी, उसमें अभी तक एक भी मछली नहीं थी. तो उससे एक आदमी ने चलते चलते पूछा कि सुबह से कितनी मछली पकड़ी हैं, अभी तूने घर भी जाना होगा, शाम हो गई है, तो आज कितनी मछलियां पकड़ी. तो वो कहता एक वो जिसे अभी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बाद 2 और पकड़ूंगा, टोटल 3 हो जाएंगी. पकड़ी अभी एक भी नहीं है. ये चंद्र राहु है. जो हुआ ही नहीं, इल्यूजन, जो अभी हुआ ही नहीं, जिसकी अभी कोई उम्मीद ही नहीं, जिसकी कोई गारंटी नहीं. कोई गारंटी नहीं है कि अगली मछली आएगी, ये मछली आएगी कि नहीं आएगी. उधर रोज 10 सिगरेट पीता होगा, दूसरे बंदों को ना गनाएगा कि सिगरेट के क्या क्या नुकसान है और आपको नहीं पीना चाहिए. ठीक है. तो चंद्र राहु खुद इल्यूजन में रहता है, दूसरों को भी इल्यूजन में रखता है. दिस इज द खासियत ऑफ इल्यूजन. हाँ जी सेजल जी, हैव अ क्वेश्चन. विल आई टेक द क्वेश्चंस क्विकली एंड देन आई विल टेल यू द क्विक नोट्स ऑफ फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड एवरीथिंग. सर मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना है कि मेरा कंजंक्शन गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता. हाँ जी, मून क्या और राहु का. बताओ. 3rd हाउस में मेरा मून है और 4th हाउस में राहु है. डिग्रीज. और डिग्री वाइज मून 26 है और राहु 29 डिग्रीज है. तो राहु 29 है तो ये कंजंक्शन हुआ. No. See, that is the conjunction of course because Rahu is moving from 0 to 30, right? So वो 29, 26, you have to see that difference. The difference is only 5 degrees, 6 degrees in fact. So it is a conjunction. Yeah, that's why I'm asking. Yeah, it is a conjunction, definitely. Okay. हाँ जी इतना समझ. स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन नहीं है जितना सेम हाउस में रहता है. Both are in different signs. एक्चुअली कंजंक्शन पापा ने बोला सेम हाउस में रहता है क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंट साइन द कंजंक्शन इज लेस पावरफुल बिकॉज राहु विल टेक ओवर द साइन फर्स्ट एंड देन थिंक लेटर अबाउट द
मून। ओके। हाँ जी समृद्ध जी। सर अगर राहु हमारा लग्नेश हुआ तो शिव की आराधना करनी ही चाहिए क्या? डेफिनेटली करनी चाहिए। और सबने ही करनी चाहिए या फिर स्पेसिफिक लोगों ने? नहीं देखो, मैं किसी को किसी के भगवान से दूर करने वाला कौन होता हूँ? मैं तो कहूँगा सब करो। क्यों कोई भी सारे क्यों ही ना भगवानों करे, की कोई करनी भी क्यों चाहिए। ना करे। देखो सभी भगवान एक ही हैं। ये टॉपिक भगवान की तरफ चला जाएगा, वहाँ मैं जाना नहीं चाहता, ना ही मैं जाऊँगा। लेकिन इवेंचुअली सभी भगवान एक ही हैं। जिस दिन आपको मालूम पड़ गया कि ब्रह्मा ही विष्णु हैं, विष्णु ही महेश हैं, तो उस दिन कहानी अलग हो जाएगी। हैं सब एक ही, कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट डिफरेंट चैनल्स ऑफ एनर्जीज यूज़ की गई हैं हमें थोड़ा सा चैनलाइज करने के लिए। अब हनुमान जी की उपासना भी बोलते हैं ना, हाँ, वो भी राहु, रुद्र वो भी इसीलिए कि हनुमान जी बेसिकली शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं ना। ठीक है। हाँ जी, तृप्त्री, आई कांट प्रोनाउंस योर नेम, सो सॉरी बट। सर तृप्ति रेखा सर। सर नमस्ते। तृप्ति रेखा, हाँ जी तृप्ति जी, जी हुकुम। सर। जी सर। सर मेरा ये जानना था, मेरा भी वही राहु और मून का कंजक्शन है, लेकिन साथ में जुपिटर है और सन भी है। तो जुपिटर और सन Pisces गुड हो गया, में। यहाँ जुपिटर और सन गुड हो गया। लेकिन प्रॉब्लम जी। क्या आएगी? द राहु विल एक्चुअली टेक ओवर ईदर द जुपिटर और द सन। इफ इट विल टेक ओवर द सन हियर, ही इज एक्चुअली गोना मेक यू फील लाइक इन अ पितृ दोष। दैट मीन्स आप जितना डिजर्व करोगे उतना राइज नहीं करोगे। आपकी लाइट के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा बंध गया। दैट इज सन प्लस राहु। And when it's gonna take over Jupiter, he's gonna change your religion. He's gonna change your religious beliefs. He's actually gonna make you feel like that some living guru is gonna enter into your life. ठीक है? And then your path of devotion is gonna change its path. So that is how it's actually gonna work. ठीक है? सर आपने बोला कि टॉरस में अच्छा होता है, तो मेरा लगन तो टॉरस में है और रोहिणी है नक्षत्र। रोहिणी है तो बस नजर से बचो, बाकी ठीक है। एक बात जी, बहुत thank you, इम्पोर्टेंट sir. हम लोग मिस ना कर जाएं, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। चंद्र राहु अपने अपने दिमाग में ले आइए, चंद्र राहु। अब यहाँ पे अगर राहु चंद्रमा के पीछे है डिग्री में एंड मूविंग टुवर्ड्स मून, देन क्या होगा? और अगर इससे उल्टा है तो देन क्या होगा? अनमोल विल एक्सप्लेन। So remember one thing, that Rahu is moving opposite direction, यानी कि राहु हमेशा उल्टा आ रहा है। तो ये हमारी नंबर लाइन है, ये 30 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। राहु इज मूविंग दिस वे 30 to 0, ओके, एंड नॉर्मल प्लैनेट्स आर मूविंग फ्रॉम 0 to 30। तो सेजल जी आपका क्वेश्चन था ना वो वाला, तो कंजंक्शन नहीं है, ठीक है? कंजंक्शन नहीं है, ओके। मैं कुछ और कंफ्यूज कर गया था डिग्री से। देयर इज नो कंजंक्शन टू इट, ठीक है? बिकॉज द राहु इज एक्चुअली अभी एंटर ही हुआ है 4th हाउस में, ठीक है? तो अब इसके बाद यदि राहु की एक खासियत होती है कि राहु इज एनगल्फिंग पावर। एनगल्फिंग पता है? अमीबा देखा है? अमीबा खाना कैसे खाता है? डू यू नो हाउ अमीबा ईट्स द फूड? उसके जो ये सीडो, क्या कहते हैं इनको, मेरे को नाम भूल गया, सीडोपोडियाज। ये जो सीडोपोडियाज होते हैं, पोडिया इज बेसिकली फिंगर, सीडो इज फेक। सो दीज फेक फिंगर्स एक्चुअली कम अप एंड एनगल्फ इट्स फूड। यहाँ आएगा तो एकदम से यहाँ से बंद कर लेगा अमीबा। द सेम वे राहु वर्क्स। इफ द प्लैनेट इज बिहाइंड हिम, द राहु विल गिव हिज सीडो फेक आर्म्स आउट एंड एनगल्फ दैट प्लैनेट। उस प्लैनेट को खा जाएगा राहु। और जब राहु किसी प्लैनेट को खाता है, उस प्लैनेट के प्रभाव आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव या कम आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि यदि वो गुरु कौन है? गुरु इज इक्वल टू जीवा। जीवा यानी आप। यदि जीव को राहु खा जाए, यानी राहु इधर आ रहा है, जीव को राहु खा जाए तो हेल्थ इश्यूज देता है। इसी तरह से यदि चंद्र को राहु खा जाए तो ये डिप्रेशन, एग्जाइटी, ओवर थिंकिंग देता है। बिकॉज अगेन द टेकिंग ओवर इज हैपनिंग थ्रू राहु। द एल्कोहल इज मोर पावरफुल देन द माइंड। ऑन द अदर हैंड, इफ द राहु हैज लेफ्ट द चंद्र अलोन, चंद्र आगे निकल चुका है, राहु अब अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे केस में राहु जहां जा रहा है, चंद्र धीरे धीरे बलवान होगा। सो द माइंड विल एक्चुअली हैव द पॉजिटिव रिजल्ट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
थिंग इन राहु एंड मून कंजंक्शन। और एक बार ऐड कर लें, अगर राहु चंद्र की तरफ बढ़ रहा है और चंद्र आपके चार्ट में जिस भी चीज का कारक है, अगर वो भरात्री कारक है, तो वो आपके भाई को छोड़ने वाला नहीं है अपनी दशा अंतरदशा में। अगर वो किसी चीज का भी कारक है चंद्र, तो वो समझ लीजिए कि जीव के तौर पर या रिलेशन के तौर पर वो खत्म हो जाएगा। अगर वीनस है तो आपके रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। अगर सन है तो जो भी सन जिस चीज का भी कारक है आपके चार्ट में, वो कारक को राहु एनगल्फ कर लेगा। अब मेरे बारे में लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी ना प्रेडिक्शंस बहुत नेगेटिव जो होती है ना, वो फलित हो जाती हैं। तो मैं करूं क्या, लोगों के चार्ट में मुझे चीजें दिखाई देती हैं कि राहु एनगल्फ कर रहा है, तो मैं बोल देता हूँ भाई तेरा ये चीज नहीं बनने वाली, तो वो नहीं बनती। तो ये चीज आप ना आज पल्ले बांध लो, ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। कंजंक्शन तो आपको सभी बताएंगे ऊपर ऊपर से, ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन डिग्री को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। क्या राहु चंद्र को क्रॉस करके निकल चुका है या फिर अभी उसकी ओर बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो सिचुएशन माइट बी प्रॉब्लमेटिक। अगर निकल चुका है तो बहुत बढ़िया है, उसका चंद्र मजबूत है, वो पास्ट लाइफ में अब हमने सारी चीजें कर ली हैं, अब हम पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आ रहे हैं राहु के। तो इसको तो पल्ले बांध लो आज की क्लास के बाद सभी लोग। बस यही बोलना था मैं। हाँ जी रिया जी। सर मेरे चार्ट में राहु कैंसर में है एंड जो चंद्र है वो उससे आगे बैठा है, मतलब मेरा लग्न इज लिब्रा। नाउ important part, if the Chandra is Rahu and the Libra is ascendant, this is jealousy yoga. Lack of love, lack of understanding, lack of opponents, lack of the things that you should actually get. And the reason behind it is that the Libra and Chandra sign, Cancer sign, these both of the signs are the feminine signs in nature, and these two females when they come together they cause jealousy. ठीक है, और ये एक दूसरे से केंद्र में आती हैं 4 और 7। तो आप क्वेश्चन पूछो, ये मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बताया आपको। सर तो राहु अभी मेरे चार्ट में एज अ चंद्र की तरह वर्क करेगा। यस यस यस, राहु विल वर्क एज हाउ इज योर मदर्स हेल्थ? सर ठीक है, चलो देन द राहु इज पॉजिटिव। सिंपल रूल, जब राहु कर्क में चला जाए उस रिलेशन की हेल्थ पूछ लो। ओके, इफ इट इज फाइन तो चंद्रा इज गिविंग यू गुड रिजल्ट्स देयर, राहु इज गिविंग यू गुड रिजल्ट्स, यू डोंट नीड टू वरी मच। ओके ठीक है। यदि राहु एरीज में है, अपनी हेल्थ देखो। राहु टॉरस में है, घर पे फैमिली मेंबर की हेल्थ देखो। राहु जेमिनी में है, भाई बहन की हेल्थ देखो। राहु कैंसर में है, मम्मी की हेल्थ देखो। राहु यदि पॉजिटिव दे रहा है तो पहले हेल्थ पक्की गारंटी है कि उस रिलेशन की सही रखेगा। ठीक है। हाँ जी वैभवी जी। राहु जिस घर में बैठता है ना, ध्यान से सुनिए, ये भी सूत्र है। राहु जिस घर में बैठेगा, जो उस घर के मटेरियल फल है, जो उस घर के मटेरियल फल है, ओके, ही माइट हैव रिसीव्ड अ कॉल, लेट मी टेल यू। सो उसके जो मटेरियल फल हैं वो आपको देता है, और उसके जो जीव फल हैं उसको नेगेटिव कर देता है। ठीक है, यानी कि जो उसके साथ जीव रिलेटेड है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, और नेचुरली उसके रिलेटेड अच्छी आते हैं। हाँ जी वैभवी जी। So, are we supposed to consider the trine also as a conjunction? Yes. If it comes in trine? Definitely. And if it's in moksha trine, then only Rahu and Moon? Your moksha way has to be artificial. Rahu is also artificial. But मैं अभी उधर उस डिटेल में नहीं जाऊँगा. That is like a totally. But it's basically considered as a conjunction. It is conjunction. It is conjunction. हाँ जी यश जी। So quick question, you just mentioned about like if Rahu is in Gemini, then consider brothers or siblings, and then the Cancer as mother. Libra should be considered as because there's Taurus too. Sorry, दोबारा बोलना। So Libra should be considered as a. Taurus is your whole family. Taurus is your whole family. Okay, and then Libra should be wife then? Libra should be wife, partners. Okay. And so there was another question I think you just discussed. So if Rahu going away from the moon, so it's a good thing. But if the moon is in Scorpio,
but the moon is already debilitated, right? Does it still have the effect of Rahu or? Yeah, it will have the effect of Rahu. In fact, double effect of Rahu. Emotional turmoil जहाँ ज़्यादा आएंगे. So even though the Rahu is away from the moon? Doesn't matter. Same house. स्कॉर्पियो में मून राहु कंजंक्शन बनेगा ना, अगर जुपिटर की दृष्टि नहीं है ना, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, ये सारे एंटी डिप्रेसेंट पर होते हैं. जी, ओके. ठीक है, अब मैं एस्पेक्ट्स का बता देता हूँ. अगर जुपिटर एस्पेक्ट करेगा तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज द एंटीटोड टू द स्मोक. अगर सैटर्न करेगा तो आपको बाउंड्रीज एंड एंड्योरेंस टेस्ट करेगा. अगर मरकरी करेगा तो एक्सीलेंट है, लेकिन चंद्र यहाँ सफ़र करेगा थोड़ा सा. वीनस करेगा तो ये हर एक चीज़ में ब्यूटी ऐड कर देंगे. मार्स करेगा तो ये ओवर करेज एंड ओवर एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग्स में पड़ जाते हैं, वो नहीं पढ़ना है. ठीक है. एंड देन लेट मी टेल यू द हाउसेज रियल क्विक. आई थिंक मैंने उसके नोट्स ही बनाए हुए थे, इफ़ आई फाइंड इट. Okay, let it be. You can just decode the houses later now. We are already very late today. I have some other work to complete, but I'll take your questions. Hanji Jinal ji, you have a question? Yeah, sir. Sir, my question is that अगर जैसा आपने बोला ना कि अगर इस साइन में है तो इस रिलेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो अगर 6 हाउस में है मतलब वर्गो में है और 8 हाउस में है तो किसकी हानि होगी? मतलब पेट्स. अगर पेट्स नहीं है तो सर्वेंट, और वो भी नहीं हो तो आप काउंट करिए. चलो मामा जी. 4th हाउस का 3rd हाउस मामा जी हो गए. 9th हाउस का 10th हाउस हो गया. फादर का करियर गया कहीं ना कहीं. 8th हाउस का 11th हाउस हो गया. फैमिली, क्लोज पीपल ऑफ योर नानके. ठीक है. यू कैन काउंट एनी एज मच एज यू वांट टू नाउ. दिस इज द इजीएस्ट वे. In fact, your mom will also suffer somehow. Why? Because it is 4th from the 3rd. आपके भाई बहन की मम्मी भी 4th हाउस है. हाँ, तो भवत भावम देख के करना है. भवत भावम नहीं कह रहा मैं. ये दिस इज लाइक बेसिक थ्योरी ऑफ काउंटिंग हाउसेज फ्रॉम हाउसेज. इट इज नॉट हाउस ऑफ द हाउस. हाउस ऑफ द हाउस इज भवत भाव. ठीक है. हाँ जी रितेश जी. थैंक यू. सर, आपने नक्षत्र देखने बोला, तो उसको मून का देखना है कि राहु का? दोनों का देखना सर. दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है. सर, इन माय केस मून इज इन 8th हाउस इन कैप्रिकॉर्न एंड राहु इज इन पाइसेस इन 10th हाउस. ओ भाई, ऐसे मैंने नहीं बोला नक्षत्र देखना है. मैंने नक्षत्र देखने को बोला है जब ये दोनों साथ में एक ही घर में हों, क्योंकि जब एक ही घर में प्लैनेट होते हैं तो एक और टर्म ऐड हो जाती है ग्रह युद्ध की. ठीक है. ग्रह युद्ध. प्लैनेट आपके साथ है कि नहीं है. अब प्रॉब्लम ये है कि 1 घंटे में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना इम्पॉसिबल है. आप सिर्फ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन लो नो, इस तरह से क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं. तो मैंने कोशिश की जितना मैं आपको चंद्र राहु आज बता सकता था. इससे ज़्यादा डिटेल में चंद्र राहु आई डोंट थिंक सो कि कहीं आपको जल्दी मिलेगा. अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है. आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू गाइस गेट इट. सर, पाइसेस वाला राहु चंद्र राहु काउंट होता है? कैसे काउंट होगा भाई मेरे? चंद्र राहु काउंट अगर वो 8th हाउस में कैप्रिकॉन में है, वो 3rd टू इट है, उसको नहीं लेना है. डायरेक्ट कंजंक्शन नहीं है, वो सिर्फ कार्डिनल क्रॉस की कंजंक्शन है. उसका टोटली डिफरेंट रिजल्ट होता है. ठीक है. चलो, ओके सर, थैंक यू. वी आर डन फॉर द डे एंड we'll do some other lessons very soon, and I'm going to start new course on Vedic astrology by end of this month. If you guys are interested, you can definitely join, and that is going to be from core to advance. Okay, chalo, bye bye, take care.